we are going to discuss about NIPPV ventilation in neonates through a ventilator. कि आप एक वेंटिलेटर के थ्रू NIPPV कैसे दे सकते हैं. NIPPV आप बहुत सारे डिफरेंट मशीन्स के थ्रू दे सकते हैं, बट अगर आप ज़रूरी नहीं है कि आपके हॉस्पिटल में सारी हाई एंड मशीन्स हो, तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसको यूटिलाइज करके आप अपना काम कर सकते हैं. So basically it's NIPST for neonates. It's gentle ventilation which has a very powerful impact in neonates. So we will cover basically why non-invasive ventilation matters, some core physiology, NIPPV की initial settings को discuss करेंगे, trouble shooting को discuss करेंगे, waveform को कैसे पढ़ना है और wean off कैसे करना है. So let's start with why non-invasive ventilation matters. So non-invasive respiratory support has been a central strategy in neonatal care for years, and aiming to limit the harm of intubation. We all know preterm infants managed with non-invasive ventilation show lower rates of chronic lung diseases compared with invasive ventilation. Everybody knows that outcomes also trend favorably across other lung protection measures when non-invasive support is used first. More recent evidence points to NIPPV outperforming simple nasal CPAP, particularly around reducing extubation failure. We have been using CPAP, हम लोग बहुत normally अपने आप लोग use करते होंगे. So now this is another mode which is like in the research process. मतलब ये सब start करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि this is not an official mode right now. कोई आपको इसकी guidelines अभी proper नहीं मिलेंगी, आपको books में भी नहीं मिलेगा, because this is in the process of like trials and researches. अभी इसके ऊपर हो रही है और सब लोग इसको as a non-officially ही use करते हैं. जैसे let's suppose पहले न्यूनेट्स में NCPAP मोड था, तो NCPAP के ऊपर हमारे पास बहुत सारी गाइडलाइंस हैं and everything we know about it. उसके बाद हाई फ्लो इंट्रोड्यूस हुआ कि नहीं, हाई फ्लो का भी कुछ इम्पैक्ट. इसी तरह NIPPV is now in the process of getting into the field. तो अभी ये ट्रायल्स ही चल रहे हैं इसके ऊपर और ये पूरी दुनिया यूज कर रही है. ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई जुगाड़ तरीका है या कुछ है, बट अनऑफिशियली लोग यूज कर रहे हैं और लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं. मैंने इसमें कुछ स्टडीज भी अटैच की है which shows some result of this. Okay, so this chart, ये चार्ट हमें पता होना चाहिए कि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटरी सपोर्ट में न्यूनेट्स में कौन कौन से लाइक मोड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं. सो वी हैव लाइक अगर ब्रॉडली हम इसको क्लासिफाई करें तो वी हैव अ काइंड ऑफ थेरेपीज दैट विल प्रोवाइड अ कांस्टेंट एयरवे प्रेशर, एंड देन वी हैव kind of therapies that has variable airway pressures. Constant airway pressure में हमारे पास nasal cannulas आ जाते हैं और CPAP आ जाते हैं. CPAP हमें पता है कि CPAP भी दो तरह के होते हैं, एक होता है constant flow CPAP और एक होता है variable flow CPAP. और वेरिएबल कांस्टेंट फ्लो CPAP कन्वेंशनल CPAP आ जाता है, जो आप वेंटिलेटर से देते हो वो भी कन्वेंशनल CPAP होता है, और अगर आप वो ब्लेंडर के थ्रू देते हो वो भी एक लाइक कांस्टेंट एयरवे प्रेशर होता है. वेरिएबल फ्लो CPAP के लिए एक अलग से डिवाइसेस आती है दैट आर एबल टू डिलीवर वेरिएबल फ्लो CPAP, जिसमें मार्केट में एक मौजूद है मेडिन की डिवाइस या ड्रैगर के वेंटिलेटर से, या और बहुत सारी डिवाइसेस मौजूद है जो कि वेरिएबल फ्लो CPAP देती है, जो कि नॉर्मल कन्वेंशनल CPAP से भी थोड़ा अच्छा इफेक्ट होता है उनका. And then nasal cannula में we know we have LFNC and HFNC. LFNC is low flow oxygen and high flow oxygen. Variable airway pressures में हमारे पास
यही NIPPV एंड SNIPPV आ जाता है, और नेजल बायपैप भी कोई वेंटिलेटर में ऑप्शन होता है, हम दे देते हैं, और नेजल HFOV भी हमारे पास वेरिएबल एयर प्रेशर इसमें आ जाता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल चार्ट जिससे हम पता कर सकते हैं कि हम हमारी कौन सी थेरेपी है। Okay, so why we need an alternative to CPAP? CPAP does not consistently improve ventilation and does not work well in infants with poor respiratory efforts. मतलब जो बच्चे बहुत ज़्यादा frequent apneas में जाते हैं, of course they will need a backup rate. Not what a CPAP will do, it will only provide a constant airway pressure during inspiration and expiration, but the baby has to breathe. मतलब so if the baby gets apneic, तो अगर आपके पास सिंपल CPAP चल रहा है तो एक तो आपको पता नहीं चलेगा, उसमें मॉनिटरिंग नहीं। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ब्लेंडर बेस CPAP का कि वो बहुत अच्छा, मतलब आपके पास प्रेशर तो होता है बट उसके अंदर आपकी कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होता है। मतलब उसको आप FiO2 भी मॉनिटर नहीं कर सकते हैं और उसके प्रेशर भी मॉनिटर नहीं कर सकते, उसके लीक भी मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, और इफ द बेबी इज गेटिंग एपनिक वो भी आप मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ दैट कन्वेंशनल CPAP। तो जिसकी वजह से it says that 46 to 60% of babies with RDS may fail on CPAP and 20 to 40% of intubated low birth infant fail extubation to CPAP. अगर आप उनको एक्सटूबेट करके CPAP पे डालेंगे तो वो भी मेरे ख्याल में CPAP failure, these are studies and these are taken from these numbers are taken from a lot of studies. So invasive ventilation cause barotrauma, सबको पता है, and epilectrotrauma and biotrauma together ventilation induced lung injury हो सकती है। So intermittent positive pressure delivered by a nasal device was proposed as a way to support ventilation while avoiding invasive ventilation. तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा will go for intubation anytime soon, so this is another mode जो कि आप उसको एक ट्रायल दे सकते हैं to prevent intubation and also to prevent extubation failure. Okay, so let's compare the bubble CPAP and NIV-ST mode. What happens? The pressure delivery in the bubble CPAP is continuous through inspiration and expiration. But in NIV-ST, PIP is delivered with breath above the PEEP. So it has two pressure, PEEP and PIP over the PEEP. So two like the conventional ventilators we have. Yes, fine. Yes. And respiratory rate, like in bubble CPAP, we do not have a rate. The patient has to take breath. But in NIV-ST, we can set a backup rate and the patient can also take breaths. In tidal volume and minute ventilation relies only on patient effort. Patient जितनी एफर्ट करेगा उतना ही टाइडल वॉल्यूम बनेगा। बट NIV-ST के अंदर जब हम पिप बढ़ाएंगे तो उससे हमारे पास टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगा और आपकी मिनट वेंटिलेशन भी बढ़ेगी। Oxygenation, like both will improve oxygenation and decrease CO2, but in NIV-ST it will do much better than CPAP. In work of breathing, improve lung compliance and reduce effort, and it will also improve lung compliance and reduce effort much more than CPAP. And typical indication for bubble CPAP is moderate to severe respiratory distress. If the FiO2 is getting 40%, more than 40%, and if the baby is tachypneic. But NIV-ST को सेम आप मॉडरेट टू सिवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में लगा सकते हैं, प्लस उन बच्चों में लगा सकते हैं which who has frequent apneas and who are floppy, like low birth weight या low gestational, extremely low gestational age में if they are floppy and frequent apneas हो रहे हैं तो उनमें आप NIV-ST लगा सकते हैं। So these are the graph. This is the graph inspiration and expiration हो रही है। If you add a P, so the patient
inspire above that pressure and expire to the level of that pressure. This is bubble CPAP. बबल CPAP में हम क्या करते हैं? बबल CPAP में हम फ्लो और FiO2 सेट करते हैं और पीप सेट करते हैं. फ्लो हम सेट करते हैं फ्लोमीटर से, FiO2 हम ब्लेंडर से सेट करते हैं, and the PEEP level is decided by the depth of the expiratory limb. जितना वो ज्यादा डेप्थ में जाएगा उतना प्रेशर ज्यादा बनता है, और जितना आप उसको ऊपर उठाते हैं उतना कम प्रेशर बनता है, राइट? सो हमारे पास ये भी पता नहीं चल रहा होता, हम तो यही समझ रहे होते हैं कि अगर हमने 5 का पीप रखी हुई है, एक तो हमारे पास हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपने डिपार्टमेंट्स में वो जो एक्यूरेट बॉटल्स आती हैं जिससे आप पीप सेट करते हो, वो हम यूज नहीं करते. हम लोग जो है वो सिंपल एक सलाइन की बॉटल लेते हैं, उस पे हम मार्किंग करते हैं और फिर वी आर एक्सपेक्टिंग के वो उतना ही प्रेशर दे रहा होगा. हमने जो वी नेवर नो कि बच्चे को वो मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है. एंड अगेन वो सब प्रॉब्लम्स जो भी मैंने आपको बताई, नो मॉनिटरिंग सिस्टम, FiO2 आपने दी है, कितनी जा रही है बच्चे को, नो मॉनिटरिंग. लीक हो रहा है, वो किसी वक्त बच्चा हिल गया, वो प्रॉन्ग्स निकल गए, वो जो सलाइन की बॉटल में वो ज्यादा डेप्थ में चला गया, कितना प्रेशर बन रहा है, वी नेवर, नो मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर बबल CPAP. और फिर हम फ्लो को एडजस्ट करते हैं, हम उसको लगाते हैं 6 लीटर पे एंड वी एक्सपेक्ट कि वो 5 लीटर का वो 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का प्रेशर बनाए. तो हमें ये भी नहीं पता चल रहा होता कि हम फ्लो कितना रखें जिसपे प्रेशर जो हमें चाहिए वो बनेगा, वो हमें कुछ नहीं पता चल रहा होता. तो अच्छा, फिर हमारे पास लिमिटेशन बबल CPAP की ये है कि एवरीबडी नोज कि हम बबल CPAP पे 8 से ज्यादा का पीप नहीं दे सकते, मतलब मैक्सिमम इज 8 लीटर्स. अब 8 से ज्यादा हम लेट्स सपोज हमारा बच्चा नहीं इम्प्रूव हो रहा है, 8 की पीप भी हमने दे दिए, तो मजीद क्या हम उसकी पीप बढ़ा सकते हैं? नहीं. क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि अगर हम 8 से ज्यादा पीप देंगे बच्चे को तो क्या होगा, वी विल एक्सपेंड द एल्वोलाई above that limit. उनकी स्ट्रेचिंग लिमिट से हम ज्यादा अगर उसको स्ट्रेच कर देंगे एल्वोलाइज को, तो क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज द साइड इफेक्ट के वो एल्वोलाइज के इर्द गिर्द जो हमारी कैपिलरीज होंगी वो कंप्रेस हो जाएंगी एंड वी विल स्टार्ट गेटिंग VQ मिसमैच. VQ मिसमैच हो जाएगा तो जो आप पीप से ऑक्सीजनेशन बेटर करना चाहते हैं वो उल्टा वर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने एल्वोलाइज को एक्सपेंड कर दिया है बियॉन्ड देयर लिमिट, and that can also cause barotraumas. So we have limitation to bubble CPAP. If the PEEP is too high, that the alveoli cannot stretch further, this changes compliance and the baby will not able to take a bigger breath that can lead to CO2 retention also. So that's the picture जो इस तरह से आपके पास. So that's why now we have this mode which is called NIPST. In some ventilator like in Hamilton this is called NIPST, या बहुत बाकी ventilator में आपको as a NIPPV आप इसको denote कर सकते हैं. A mode that layers a set number of intermittent mechanical breaths with PIP on top of continuous PEEP baseline PEEP. You can give PIP over the PEEP, so you will have two pressures. Versus NCPAP, mandatory intermittent PIP rises tidal volume and minute volume, improving gas exchange. जैसे मैंने आपको बताया कि आप जितना PIP इंक्रीज करोगे तो आपका टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और टाइडल वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तो आपकी मिनट वेंटिलेशन इंक्रीज होगी, उससे बेटर CO2 होगी. So this mode can be given in synchronization with the baby effort, that is called SNIPPV, and some ventilator has the capacity कि वो baby के breath को भी support करे, and there can be non-synchronized which is called just NIPPV. Breaths are delivered independent of the infant on respiratory efforts. तो आप इसको as a synchronization with बच्चे की effort के साथ भी use कर सकते हैं, without effort भी use कर सकते हैं.
ओके, 3 things we need to understand. ये जो है हम लोग अगर कभी भी कोई भी प्रेजेंटेशन दें उसके लिए ये 3 चीजें या कोई भी रेस्पिरेटरी थेरेपी हम यूज करें उसके लिए ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड. दीज आर लाइक द बेसिक ऑफ एनी रेस्पिरेटरी थेरेपी. व्हाट इज दिस? we should know about pressure, flow and volume. Like what is pressure, what is flow and what is volume. अगर किसी को भी कुछ भी मतलब पता हो कि प्रेशर क्या चीज है, क्योंकि हम इसी के ऊपर बात कर रहे होते हैं ना, कोई भी थेरेपी यूज करें, इतना प्रेशर दे दो, इतना फ्लो दे दो, इतना वॉल्यूम दे दो, तो ये बेसिकली है क्या चीज है. व्हाट इज फ्लो? लाइक फ्लो क्या चीज है? What flow does? What is a flow? कि आप कहते हो भाई फ्लो बढ़ा दो, फ्लो बढ़ा दो मतलब 5 liters per minute कर दो, 6 liters per minute कर दो, 7 liters per minute कर दो, and maximum flow we can give is like 12 to 13 to a unit, and why not more than that? What is a flow? The optimum amount of oxygen to be delivered for the unit to open up the baby's alveoli, and so that we should not harm like retinopathies or any other side effects of over oxygenation or giving the 100% oxygen. Okay, you आपके लिहाज से this is flow. Anybody else? कोई मतलब बस randomly कुछ भी बता. Okay, let me say. Flow is बहुत आसान अल्फाज में the speed of the gas, the rate of the gas. So basically रेट का मतलब ये है कि अगर आप फ्लो मीटर आपके पास लगे हुए होते हैं, आप फ्लो मीटर को 5 लीटर्स पर मिनट पे सेट करते हो, तो इसका मतलब है कि 1 मिनट के अंदर 5 लीटर ऑक्सीजन मिलेगी बच्चे को. दिस इज फ्लो. अगर आप उसी फ्लो मीटर को 10 लीटर्स पे कर दोगे तो नाउ 1 मिनट के अंदर 10 लीटर की ऑक्सीजन निकलेगी, तो द स्पीड विल बी मोर. You know? Yes. और जब ये ऑक्सीजन इतनी ज्यादा स्पीड से जाती है तो what it does to our airways and your nostrils and all the respiratory tract, it dries it out. जितनी ज्यादा स्पीड से ऑक्सीजन जाएगी, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ कोल्ड गैस, और वो कोल्ड गैस की अगर जितनी ज्यादा स्पीड होगी वो उतनी ज्यादा क्या करेगा? ड्राई आउट करेगा. सो दैट्स वाई अगर आप ज्यादा फ्लो से ऑक्सीजन दोगे, सो यू नीड टू मेक इट heated and humidified, right? So this is flow, the rate of the speed of the gas, oxygen की speed हो गई. Here I want to make one thing clear. It's not only the oxygen which is given to a unit time. It's the mixture of oxygen and gas. This is air, air and oxygen का. Basically we are talking about gas, ना? Gas is air and oxygen का जो gas है. तो gases के तरह से हमने सोचना है कि what gases does to the body. And pressure. Pressure is what if you know अगर आप किसी बंद जगह पे गैस को बंद करेंगे, so it exerts a certain kind of pressure to the surface of that closed system. So the more closed the system is, the more pressure it will exert. जितने छोटी जगह पे आप ज्यादा गैस डालोगे ज्यादा प्रेशर बनेगा, और जितनी तंग रास्ते से गैस गुजरेगी उतना ही ज्यादा प्रेशर बनेगा. जितनी खुली जगह से गैस गुजरेगी तो कम प्रेशर बनेगा. सो दैट्स आवर प्रेशर, यू नो, दैट्स आवर पीप और पीप और व्हाटएवर, यू नो, दिस इज प्रेशर. वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ द गैस, कि उसमें लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस के कितना अमाउंट होगा. सो लाइक इफ वी से कि आपने एक बच्चे को 20 ml देंगे, so 20 ml it is like मतलब मेजर होते हैं ml. So 20 ml of the gas is present in molecules of the gas is present, right? Now what does they do during ventilation?
the pressure will recruits the alveoli. You know, if you give pressure, it will recruits, मतलब alveoli को open कर. If you give flow, it will stabilize the inspiration. It will help you in stabilizing the inspiration. And if you give volume, tidal volume, it helps in clearing the CO2. So now you have to decide कि आपने एक बच्चे को खाली flow देना है, who needs only the stabilization of his inspiration, या आपने साथ में pressure भी देना है, या आपने तीनों चीजें दी. You know, if the baby is more sick, तो आप ये तीनों, तो कुछ ऐसी आपके पास थेरेपीज हैं जिसमें आप सिर्फ फ्लो, लेट्स सपोज हाई फ्लो, इट्स ओनली फ्लो, नो प्रेशर इज इन्वॉल्व. तो अगर आपके बच्चे के एल्वोलाइज कोलैप्स्ड है और आप उसको हाई फ्लो पे रखोगे, you know, you need a pressure to recruit, तो आपको कुछ ना कुछ प्रेशर चाहिए होगा. कितना प्रेशर चाहिए और कितने लेवल्स ऑफ प्रेशर चाहिए, लाइक वन लेवल ऑफ प्रेशर चाहिए या टू लेवल्स ऑफ प्रेशर. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ज्यादा प्रेशर चाहिए, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन कम चाहिए. सो ना इस तरह से हम डिसाइड करते हैं. एंड अगर CO2 का भी मसला है रिटेंशन का, तो साथ में वॉल्यूम भी देंगे. तो हम ये तीनों चीजें जो है एक वेंटिलेटर के थ्रू दे सकते हैं, यू नो. तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये इन्वेसिवली देना है या नॉन इन्वेसिवली देना है. तो इन्वेसिवली तो सबको पता है कि हम ETT डालेंगे और पेशेंट को किसी ना किसी वेंटिलेशन मोड में डालेंगे, एंड देन वी कंट्रोल सम ऑफ द थिंग्स के, या तो हम उसको प्रेशर कंट्रोल करेंगे या बट this NIPPV mode will delivers oxygen, then PEEP, a backup respiratory rate, और ये सब चीजें विदाउट एन एंडोट्रेकियल ट्यूब. जनरली तो ये सारी चीजें हम ETT के थ्रू ही देते हैं, लेकिन हम यही सारी चीजें विदाउट एन ETT देंगे. You know, all of the above is delivered through a nasal interface, preserving the airway and reducing intubation-related injuries to it. इसके लिए हम एक खास तरह का कैनुला यूज करते हैं. मैं आपको बता दूंगी. Now, patient on NIV-ST in the NICU nasal interface. So for that reason, you will need a ventilator with a humidifier. ठीक है, ये एक बड़ी बेसिक सी डायग्राम है या एक पिक्चर है जिसमें आपने सर्किट को लगाना है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता हो कि सर्किट की पार्ट्स क्या क्या है. तो जब भी आपने ह्यूमिडिफायर के साथ यूज करेंगे तो यू विल नीड अ हीटेड वायर सर्किट, यू नो. और हीटेड वायर सर्किट मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, शायद हाई फ्लो के अंदर या नहीं. जितने भी मार्केट में हीटेड वायर सर्किट आते हैं वो दो कलर के होते हैं. Like one is a colored tube and one is a transparent tube. जो colored one होती है, चाहे इसका blue color हो, चाहे green color हो, चाहे purple color, that is the inspiratory level. वो हमेशा inspiratory में जाती है. So see, this is called dry limb. ये dry रहती है, ventilator को इससे humidifier से connect करके. This goes from the humidifier और ये to the ventilator circuit and out of the ventilator circuit. So आपने इस तरह से इसको लगाना है. And for Hamilton Medical, you know कि एक आपको proximal flow sensor चाहिए. तो आपको इस तरह का, और ये है इस तरह का एक इंटरफेस चाहिए. Now इस इंटरफेस को लोग कहते हैं रैम कैनुला. So रैम जो है, रैम एक ब्रांड नेम है, you know, एक कंपनी है न्यूटेक जो USA की है, उन्होंने ये कैनुला इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट और इसको रैम का नाम दिया. अब लोग समझते हैं कि भाई हमें रैम कैनुला चाहिए, रैम कैनुला लगाएंगे. सो बेसिकली रैम कैनुला कोई हार्ड एंड फास्ट, कोई ऐसा इसके अंदर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. दिखने में ये एक सिंपल सा कैनुला ही है, कोई खास बात नहीं है. खास इसका ये जो कनेक्टर होता है, ये जो इसका पार्ट है, ये खास है. क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो आपका जो हाई फ्लो कैनुला होता है उसका जो कनेक्टर है वो इस तरह का नहीं होता, वो डिफरेंट होता है. सो एनी कैनुला विद दिस टाइप ऑफ कनेक्टर you can call it a rैम कैनुला. So this is not a
ओरिजिनल वाला रैम कैनुला, बट दिस कैन बी मतलब उसमें और इसमें क्या ही फर्क है? कोई फर्क नहीं है। इसकी ये खास इसलिए है कि ये जो रैम कैनुला है ना, ये आपके फ्लो सेंसर के साथ कंपैटिबल होता है, कोई कनेक्टर की जरूरत नहीं होती। और अगर किसी सर्किट मतलब किसी वेंटिलेटर में अगर फ्लो सेंसर यूज नहीं हो रहा तो यहाँ के सर्किट के साथ भी कनेक्ट, तो ये यूनिवर्सल इसकी कनेक्टर की वजह से ये रैम कैनुला कहलाता है। और आपको इस तरह का कोई कैनुला चाहिए कि ताकि बीच में कोई कनेक्टर्स आप यूज नहीं करें, सिंपली ये कनेक्ट हो जाए तो बेटर परफॉर्म करता है। और जब आप इसको लगाएंगे तो इट लुक लाइक दिस। अच्छा, अब ये है कि आपने ये जो रैम कैनुला है आपने डिसाइड कैसे करना है, इसके साइज, इसके भी डिफरेंट साइजेस आते हैं। सो सी दीज आर डिफरेंट साइजेस और ये कलर कोडेड होते हैं। दिस इज ब्लू, दिस इज ग्रीन एंड दिस इज व्हाइट। और इसके पीछे ये लिखा हुआ होता है लाइक दिस इज स्मॉल, और ये मीडियम है ग्रीन वाला, और ये लार्ज है। तो ये कैनुला का साइज आपने डिसाइड करना होता है कि हम कौन से साइज का कैनुला है। तो कैसे हम डिसाइड करें कि कैनुला का साइज क्या होना चाहिए? हाई फ्लो में भी हम कैनुला यूज करते हैं, तो हाई फ्लो का क्या प्रोटोकॉल है? कैनुला का साइज कितना होना चाहिए? 50% ऑफ द नियर साइज होना चाहिए। बट इसके लिए यू विल टेक अ बिगर साइज, बड़ा साइज, ऑलमोस्ट इट शुड कवर इट मोर देन 80% ऑफ द नियर, और मे बी अगर 100% भी कवर करेगा तो भी कोई मसला नहीं। वो क्यों? क्योंकि हाई फ्लो के अंदर हम 50% ऑफ द नियर साइज क्यों लेते हैं? बिकॉज उसमें वी हैव ओनली सिंगल लिंब सिस्टम। सिंगल लिंब सिस्टम होता है जस्ट फॉर इंस्पिरेशन, और पेशेंट एक्सपायर कहाँ से करेगा? वो उसी स्पेस से करेगा जो आपने छोड़ी होगी। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो CO2 रिटेंशन हो जाएगी, नेजल ब्लीड हो जाएगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो हाई फ्लो में आप फुली ब्लॉक नहीं करेंगे, लेकिन इसमें अगर आप फुली ब्लॉक इसको चाहिए बिकॉज इसके अंदर दो लिम्स हैं फॉर इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, सो पेशेंट कैन इंस्पायर एंड एक्सपायर थ्रू अ सॉकेट। तो आपने इसको बड़ा साइज लेना होता है कि ताकि वो आपका नियर्स को कवर करे और लीकेज भी कम आएगी आपके पास। इस आगे हम इसके बात करेंगे कि इसमें मसले मसाइल क्या आते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसलिए रैम कैनुला आपने बड़ा साइज का लेना होगा अगर आपने ये वाला मोड यूज करना है तो। वही आप पीछे बताइए, ब्लू व्हाइट और ग्रीन क्यों है? दिस इज स्मॉल, लार्ज और मीडियम जो है यस सर। क्यों? सर मतलब अगर बहुत छोटा बच्चा होगा तो मे बी उसको स्मॉल साइज लगेगा, उसके नियर्स छोटे होंगे तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट में आपका स्मॉल साइज में भी कंपैटिबल हो उसके नियर साइज में। या अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है नियर्स साइज का तो तुमने बता दिया, कैलिबर का भी फर्क होता है। जी सर। कैलिबर का भी फर्क होता है, mm का भी फर्क होता है। यस सर, लाइक दिस सी यू कैन विजुअली सी कि ये देखो स्मॉल साइज है तो इसके नियर एंड दिस इज मीडियम। पीछे लिखा हुआ है ये सर बहुत छोटा सा लिखा हुआ होता है, यू नो द साइजेस, और जिसके ऊपर डॉटेड है ना तो लेट्स इसके ऊपर ये तो स्मॉल के ऊपर डॉटेड है तो दिस इज द स्मॉल कैनुला। इसके नियर ठीक। अच्छा सर, हाँ दूसरा, हाँ मैं समझ गई कि इस से हम कितना फ्लो दे सकते हैं। लाइक वो इनके मैन्युफैक्चरिंग का चार्ट आता है कि स्मॉल साइज के कैनुला के लिए मैक्सिमम इतना फ्लो आप दे सकते हैं, और एवरी मैन्युफैक्चरर इज डिफरेंट। तो आप देख लें कि आप जिस भी मैन्युफैक्चरिंग का आप यूज कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप इंस्पायर्ड का यूज कर रहे हैं या फिश एंड पैकल का यूज कर रहे हैं या किसी भी कंपनी का, तो द कंपनी विल प्रोवाइड यू अ चार्ट कि स्मॉल साइज इतना प्रेशर और इतना फ्लो दे सकते हैं और मीडियम में इतना प्रेशर इतना फ्लो दे सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस के यस जो है हम जो है कोई भी कैनुला उठा के
यस बच्चे के नाक Exactly. लगाते हैं जी विदाउट नोइंग कि इसमें कितने लीटर फ्लो जो है वो ये कैमरा Exactly. और ये हर मैन्युफैक्चरर के पास होता है। जैसे हम पहले फिश एंड पैकल डील करते थे तो हम जहाँ पे भी देते थे हम एक साफ पूरा चार्ट देते थे और वो मतलब उनके आइस में लगा देते कि भाई जो रेड कलर का है लेट सपोज उसमें मैक्सिमम फ्लो इतना ही दे सकते हैं, जो ग्रीन कलर का है वो इतना ही दे सकते हैं। सो एवरी मैन्युफैक्चरर हैज अ चार्ट कि वो आपको बताएगा कि स्मॉल साइज इतना प्रेशर इतना फ्लो, ये नहीं कि बस आप लगाए जा रहे हो फिर आप कहते हो कि थेरेपी तो काम ही नहीं कर रही है। और एक ना स्मॉल साइज होता जाएगा उस पर प्रेशर ज्यादा देंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। एग्जैक्टली रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी और प्रेशर भी इंक्रीज होगा, टाइटनेस नहीं बनेंगे। सो इस वजह से वो हम आपको चार्ट दे देंगे, इसका भी है। So NIPST में what baby can initiate the breath, ventilator will support breath with inspiratory pressure and expiratory pressure, and the baby gets apneic. The ventilator delivers a rate, I time, inspiratory pressure, and this will be the graph of इसी तरह का होगा। सारे breaths एक जैसे नहीं होंगे, पेशेंट अपना भी ब्रेथ लेगा और वेंटिलेटर भी सपोर्ट करेगा जो आपने इसको दिए होंगे। लेट सपोज आपने जो रेट होता है वो बैकअप होता है, अगर बच्चा बैकअप रेट से ज्यादा रेट ले रहा होता है तो वेंटिलेटर नहीं होगा। अगर बच्चा उसने रेट से कम रेट ले रहा होता है तो देन द यू नो देयर इज अ विंडो होती है, टाइमिंग होती है विच इज कॉल्ड TCT, मतलब BCT, ब्रेथ साइकिल टाइम। तो ब्रेथ साइकिल टाइम ऐसे होता है कि लेट सपोज आपने 30 ब्रेथ्स रखे हैं वेंटिलेटर में एंड 60 डिवाइडेड बाय 30 आप करेंगे तो आपके पास एक ब्रेथ का टाइम आ जाएगा। वेंटिलेटर उस टाइम में ब्रेथ डिलीवर करेगा अगर पेशेंट ने उस वक्त सांस नहीं लिया उस विंडो के अंदर। तो अगर पेशेंट ने ले लिया तो वेंटिलेटर उसको लेने देगा, राइट। दिस इज NIPPV। SNIPPV में क्या होता है कि SNIPPV में जब बच्चा ट्रिगर करता है, सांस लेता है तो वेंटिलेटर उसी वक्त प्रोवाइड भी करते हैं, उसी की ब्रेथ को सपोर्ट करते हैं। दिस इज SNIPPV एंड सम वेंटिलेटर कैन डू दैट। लेट्स से ट्रिगर इसमें NIPST में जो है वो सिंक्रोनाइज होगा या अनसिंक्रोनाइज है? This is like partially synchronized because of the flow trigger तो इसमें भी मौजूद है। तो अगर पेशेंट ट्रिगर करता है दिस इज partially synchronized, this is not SNIPPV, this is NIPPV। इसके अंदर जो हैमिल्टन के अंदर है वो NIPPV है, SNIPPV नहीं। हमारे पास एक और जो मेडिन की डिवाइस जो मैडम आपके पास है उसमें NIPPV भी है और SNIPPV, वो मैं आपको दिखाऊं कैसे। जब ब्रेथ लेता है तो वो उस बच्चे की भी ब्रेथ के ऊपर वो पिप देते हैं तो बड़ी ब्रेथ। वायर से हमने प्रेशर सेट कर दिया ना कि इतना प्रेशर चाहिए और बच्चे का अगर कम प्रेशर होगा तो फिर बिना बैंड सपोर्ट करेगा जब वो ट्रिगर। इम्पोर्टेंट ये है ना कि फ्लो सेंसर प्रॉक्सिमल वाला होगा तो ये तो ही वो पार्शियल सिंक्रोनाइजेशन भी होगी, वरना वो भी नहीं होगी। सिर्फ Yes. वाले फ्लो सेंसर से हाँ। काम नहीं होगा। यस फ्री फ्लो सेंसर बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, द प्रॉक्सिमल फ्लो सेंसर, इसी से ही तो एफर्ट आपकी, अगर आपने फ्लो सेंसर नहीं लगाया होगा तो फिर नहीं ट्रिगर होगा। अच्छा, इनिशियल सेटिंग्स में आपने क्या F5 सेलेक्ट करनी है डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट सैचुरेशन, रेस्पिरेटरी रेट आप 15 ब्रेथ से 30 ब्रेथ रख सकते हैं। R टाइम 0.6 से 0.8 सेकंड रखना है आपने NIPPV के अंदर। अब आप समझ रहे होंगे कि ये तो ज्यादा है, हम तो 0.45 to 5 इसी तरह से रखते हैं 5, लेकिन बिकॉज इसमें लीक आ रही होती है तो बिकॉज ऑफ द लीक हम आई टाइम थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं ताकि प्रेशर रीच कर जाए। अगर आपने आई टाइम कम रखा होगा और लीकेज ज्यादा होती है तो उतना प्रेशर रीच नहीं होता उतने टाइम में, तो थोड़ा सा ज्यादा आई टाइम NIV में रखते हैं। पिप आप 15 to 25 रख सकते हैं, टी 5 to 8 रख सकते हैं, 10:1। फ्लो ट्रिगर भी आपने 1 to 1.5 लीटर्स पर मिनट रखना है, लो फॉर इजी ट्रिगरिंग, जितना लो होगा। एंड इट ऑल्सो अगेन डिपेंड्स ऑन द लीकेज कि आपके पास ज्यादा लीक आएगी तो आप
लाइक 0.5 लीटर्स पर मिनट नहीं सेलेक्ट कर सकते बिकॉज ऑटो ट्रिगर करेगा वेंटिलेटर। तो आपने 1 to 1.5 तक रखना है। ETS सब पता है, ETS लाइक ETS और P रैंप होता है। ETS is the expiratory trigger sensitivity. What does it do? It basically terminates the spontaneous breaths of the patient. पेशेंट की जो स्पॉन्टेनियस ब्रेथ्स होती है उसको टर्मिनेट करता है। तो ETS को आप जितना बढ़ाते हैं उतना आपका स्पॉन्टेनियस ब्रेथ का आई टाइम बढ़ जाता है, और जितना कम रखते हैं उतना ई टाइम। इसकी ट्रबल शूटिंग है, मैं आपको बताती हूँ कैसे सिलेक्ट करेंगे। पी रैंप होता है या पी रैंप होता है, कुछ वेंटिलेटर में स्लोप के नाम से होता है, कुछ को पी रैंप कहते हैं, कुछ और बातें बोलते हैं इसको। लेकिन बेसिकली ये क्या होता है, इट मींस कि आपने जो प्रेशर सिलेक्ट किया है वो प्रेशर आपका कितने सेकंड में रीच, कितने सेकंड ऑफ द आई टाइम में वो मैक्सिमम प्रेशर रीच हो जाए। दैट्स लेट्स सपोज 1 सेकंड का आपने आई टाइम रखा है, एंड इफ यू सेलेक्ट 50 ms इज मिली सेकेंड, तो आपका फर्स्ट 50 मिली सेकेंड में 18 का प्रेशर रीच हो जाएगा। सो दैट मीन्स ओवरशूट। तो आप इसको जितना कम रखेंगे प्रेशर उतनी जल्दी जाएगा और ओवरशूट करेगा, और जितना कम रखेंगे तो इतना स्लोली प्रेशर जनरेट बिल्ड। तो दैट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कंडीशन के आप उसको मतलब अगर स्टिफ लंग है तो आप उसको ओवरशूट नहीं करेंगे, स्लोली। और आप जितना इसको चेंज करेंगे ना, आप वेंटिलेटर के प्रेशर के ग्राफ को भी देखिएगा, उसकी स्लोप चेंज होगी। लाइक अगर इसको आप बहुत ज्यादा तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, अगर आप इसको थोड़ा सा कम तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। जो आई टाइम है दैट इज फॉर कंट्रोल ब्रेथ्स। जो वेंटिलेटर का कंट्रोल ब्रेथ होगा, द वेंटिलेटर विल गिव, लेट्स सपोज यू सेट अ प्रेशर ऑफ 18, the ventilator will give, जब वेंटिलेटर की ब्रेथ जाएगी तो it will give 18 का pressure for 0.8 second, right? So if you set a very low I time and there is a leak, so the ventilator will not reach at its pressure, though the ventilator has a capacity to compensate for leak, but आपने उसको time ही नहीं दिया, you know, for 0.1 second it was trying to compensate and then expiration हो गई। And for this I have a chart जिसमें लिखा हुआ है कि अब कब आपने ETS इसी में ही है आप याद। The most important part of this mode is alarm management। ये बहुत जरूरी है कि आपने सारी सेटिंग कर ली ना, आपने अलार्म एडजस्ट नहीं किए तो अक्सर मेरे पास कॉल्स आती हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आपका वेंट शोर कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा। बेसिकली जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपने सारी सेटिंग करने के बाद, एक तो ये जो प्रेशर का अलार्म है इन एनी वेंटिलेटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ अलार्म ही नहीं होती है, ये लिमिट भी होती है। You know, this is not only an alarm, this is also a limit. In Hamilton medical ventilator, there is a difference between like the upper limit and 10 centimeters of water limit होती है। अगर आप प्रेशर के ग्राफ को देखेंगे तो आपके पास दो लाइन शो हो रही है, एक रेड लाइन शो हो रही है और एक ब्लू लाइन शो हो रही है। तो द रेड इज द मैक्सिमम प्रेशर और द ब्लू इज द लिमिट। अगर आप इसको 30 पे सेलेक्ट करेंगे तो वेंटिलेटर आपको प्रेशर अलार्म 20 पे देना शुरू कर देगा और 20 पे लिमिट भी करना शुरू कर देगा इन अ प्रेशर मोड। तो उससे ज्यादा प्रेशर नहीं देगा वेंटिलेटर, कंटिन्यूसली आपको अलार्म करता रहेगा और लिमिट भी करता रहेगा। अगर आपको 30 तक का प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप लिमिट को 40 पे सेट करें। अगर आपको 25 का प्रेशर चाहिए मैक्सिमम, वेरी लो बर्थ वेट, एक्सट्रीमली लाइक लो जेस्टेशन एज बच्चा, तो आप उसको 35 पे करें, तो ये 25 पे। सो एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा, जब आप NIV-ST मोड यूज करेंगे उसके लिए आपका जो लो टाइडल वॉल्यूम और लो एक्सपिरेटरी मिनट का
जो है अलार्म वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? जब आप कैनुला के थ्रू देंगे तो देयर विल ऑलवेज बी अ लीक। आप लीक को 100% कम नहीं कर सकते हैं। जो वेंटिलेटर्स होते हैं दे हैव अ कैपेसिटी फॉर लीक कंपनसेशन। लीक कंपनसेशन होती है किसी वेंटिलेटर्स में आप उसको सेलेक्ट करते हैं कि आई नीड 100% लीक कंपनसेशन और उसके अंदर ऑप्शन होता है और वो आपको दिख भी रहा होता है। लेकिन कोई वेंटिलेटर में बाय डिफॉल्ट होता है, उसमें आपको दिखता नहीं है लेकिन बैक एट द सॉफ्टवेयर लीक कंपनसेशन हो रही। फॉर एग्जाम्पल हैमिल्टन के वेंटिलेटर में आप फिजिकली लीक कंपनसेशन ऑन ऑफ नहीं कर सकते। इट्स ऑलवेज ऑन एंड इट्स ऑलवेज 100% लीक कंपनसेशन होती है आपको प्रेशर मोड्स के अंदर। लेकिन एक सर्टेन लेवल तक आपकी लीक कंपनसेट होती है, उससे ज्यादा लेट सपोज अगर आपकी 80 मोर देन 50%, 60-80% लीक कंपनसेशन आ रही है तो वो कंपनसेट नहीं होगी और वेंटिलेटर आपको कंटिन्यूसली अलार्म करेगा लो टाइडल वॉल्यूम और लो एक्सपिरेटरी मिनट वॉल्यूम का अलार्म करता रहेगा इस मोड कैनुला पे, अगर रैम कैनुला आप यूज करेंगे तो। उसके लिए आप ये क्यों करता है? बेसिकली जो वेंटिलेटर का जो फ्लो सेंसर है इट ओनली सेंसेस व्हाट कम्स फ्रॉम द पेशेंट, नॉट व्हाट गोज टू द पेशेंट, यू नो। तो पेशेंट को जो आपने वेंटिलेटर को जो आपने पिप सेलेक्ट की हुई है या रेट सेलेक्ट किया हुआ है, इट इज डिलीवरिंग सम काइंड ऑफ टाइडल वॉल्यूम टू द पेशेंट, लेकिन वो टाइडल वॉल्यूम वापस नहीं आ, वापस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो नियर्स के स्पेस से कहीं ना कहीं लॉस्ट हो रहा है और ये फ्लो सेंसर उसको डिटेक्ट नहीं करना। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका या सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इस मोड को सेट करें, पेशेंट का इंटरफेस सेट करें, आप पेशेंट के नोज को देखें कि हाँ ठीक है इसके लिए ये बिल्कुल सही है, और उसके बाद आप चेस्ट ऑस्कल्टेट करें और आप हीमोडायनेमिकली पेशेंट को देखें कि सैचुरेशन बेहतर हो रही है, वर्क ऑफ ब्रीथिंग लो हो रही है, तो आप इस लो टाइडल वॉल्यूम के अलार्म को और लो एक्सपिरेटरी मिनट के अलार्म को ऑफ भी कर सकते हैं, बिकॉज ये आपको कंटिन्यूसली अलार्म करता रहेगा तो आपका बच्चा सही होगा, मतलब उसकी सैचुरेशन भी बेहतर होगी और उसकी जो है वर्क ऑफ ब्रीथिंग भी कम हो रही होगी। लेकिन वेंट अलार्म करेगा जो कि आपको डिस्टर्ब करेगा, तो यू कैन टर्न ऑफ द लो एक्सपिरेटरी मिनट वॉल्यूम एंड लो टाइडल वॉल्यूम का अलार्म। एंड ऑफ कोर्स एपनिया टाइम तो आपने सेट करना है, एंड टोटल जो रेट का अलार्म है वो आपने सेट करना है कि इफ द बेबी गेट्स टेकिपनिक, तो आपको पता चले कि अगर टेकिपनिया में जा रहा है तो दैट मींस कि द थेरेपी इज गेटिंग फिट, तो ये आप सेलेक्ट करें। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लो टाइडल वॉल्यूम और लो एक्सपिरेटरी मिनट वॉल्यूम का आप एयर एंट्री चेक करें, आप चेस्ट राइज देख लें, चेस्ट राइज हो रहा है। एंड देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर VTI, पेशेंट का VTI कितना जा रहा है, इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम कितना जा रहा है, तो पेशेंट को इंस्पायर मतलब टाइडल वॉल्यूम जा रहा है लेकिन वापस नहीं आ, तो इसलिए ये वाले अलार्म आप टर्न ऑफ कर सकते हैं इस मोड पे। नाउ how will we know that the treatment is getting successful? Treatment success predictors are decreasing FiO2 need, आपकी FiO2 decrease हो रही है to maintain 90 to 95% saturation, improving respiratory rate और work of breathing improve हो रहा है, तो that means कि आपकी therapy काम कर रही है। Most common problem with NIEST, poor synchronization, likely causes time mismatch between infant effort and vent breath। तो वेंट की ब्रीथ आपने बहुत ज्यादा रख ली है तो पेशेंट अपना भी ब्रीथ कर रहा है, वेंट भी डिलीवर कर रहा है, तो पेशेंट की ब्रेथ के ऊपर ही वेंट डिलीवर कर रहा है, तो वो एसिंक्रोनी हो जाएगी। तो फॉर दैट यू विल रीअसेस एक तो ट्रिगर की सेटिंग, कंफर्म इंटरफेस फिट एंड लीक को करना है, और आपने जो बैकअप रेट रखा है उसको कम कर दें अगर पेशेंट अच्छा कर रहा है। मिस्ड शैलो ब्रीथिंग, तो आपने फ्लो ट्रिगर की सेंसिटिविटी को बहुत हाई रखा हुआ है, सो पेशेंट की जो छोटी ब्रेथ्स थी उन्होंने ट्रिगर नहीं किया, सो लोअर द फ्लो ट्रिगर टू कैप्चर शैलो ब्रीथिंग। Auto triggering and breath taking. Expiratory trigger sensitivity is too low, so you can reduce the expiratory
ट्रिगर सेंसिटिविटी। अच्छा, ये जो एक्सपिरेटरी ट्रिगर सेंसिटिविटी का है ना, इसका थोड़ा उल्टा है कि अगर इसको आप बढ़ाएंगे तो वो लो कंसिडर होगा, अगर आप इसको कम रखेंगे तो वो हाई कंसिडर होगा। दिस इज द पीक फ्लो ऑफ, मतलब लेट सपोज वेंटिलेटर ने डिलीवर किया 100% फ्लो, तो 100% जब वो नीचे 100% का नीचे आएगा तो वो 40% तक आ जाएगा तो ब्रेथ टर्मिनेट हो जाएगी। 30 ब्रेथ्स अगर हमने वेंटिलेटर पे रखी हुई है और पेशेंट 60 ब्रेथ्स ले रहा है तो पेशेंट जो है वो 30 एक्स्ट्रा ब्रेथ्स वो लेगा। क्या है? वो क्या है? तो हम उसको स्पॉन्टेनियस ब्रेथ्स कह रहे हैं, लेकिन ऑन अ मशीन देयर इज नो सच थिंग एज सिंक्रोनाइज हो रही है ना, वेंट उनको भी बता रहा है कि वेंट कैसे सिंक्रोनाइज कर रहा है? अप्रोक्सीमेट कर क्या रहा है फ्लो सेंस? नहीं, क्या कर रहा है उस, लेट्स सी ओके। अच्छा, जो मेरा कॉन्सेप्ट है कि फ्लो सेंसर क्या करता है, पेशेंट ने ब्रेथ इनिशिएट की, हाँ, फ्लो सेंसर ये कहता है कि इसने जो प्रेशर, इंस्पिरेटरी प्रेशर मुझे दिया है कि क्या ये इतना पोर्टाइडल वॉल्यूम जनरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जितना ये वैल्यू पे सेट है या जितना हमारा रिक्वायरमेंट है, और फिर उसको प्रोसेस करके आगे ब्रेथ डिलीवर करता है। This is my concept of synchronization with this proximal. Okay. You can never fully synchronize a patient on a ventilator. Never. Except ever. NAVA. Except NAVA. Except NAVA. NAVA तो बिल्कुल ही अलग है कि वो आपकी इलेक्ट्रिकल उससे करके उसका वो कैथेटर ही अलग होता है, आपने कैथेटर लगाया होता है। एक्सेप्ट NAVA, बट ऑल्सो वो सिर्फ आपकी इंस्पिरेटरी ट्रिगर को वो करेगा, सेंस करेगा, उसके एक्सपिरेशन को फिर भी वेंटिलेटर ही टर्मिनेट करेगा। सी, आप मोड पे गए, आप स्पॉन्ट मोड पे जाए। स्पॉन्ट मोड पे आपके पास ये 4 पैरामीटर्स हैं। पी सपोर्ट, प्रेशर आपने दिया, पीप आपने मेंटेन की, FiO2 आपने दी, फ्लो ट्रिगर फॉर इंस्पिरेशन आपने सिलेक्ट किया, और आपने उसका पी रैंप और ETS एक्सपिरेटरी ट्रिगर सेंसिटिविटी भी आपने सिलेक्ट किया। सिर्फ क्या नहीं सिलेक्ट किया? रेट नहीं सिलेक्ट किया। रेट पेशेंट खुद ही जितनी ब्रेथ लेगा वो वेंटिलेटर उसको लेने देगा, और जब वो इनिशिएट करेगा तो वेंटिलेटर कुछ ना कुछ प्रेशर से सपोर्ट भी करेगा। तो इसका मतलब वेंटिलेटर जब पेशेंट इनिशिएट कर रहा है ब्रेथ को, तो वेंटिलेटर जब ट्रिगर हो रहा है तो वो 15 का प्रेशर दे रहा है। 15 का प्रेशर रीच हो गया। अब ऐसा नहीं है कि पेशेंट जब चाहे उसको एक्सपिरेशन फेज में चला जाएगा। जब वो फ्लो, जितना फ्लो रीच होगा उसकी जो एक्सपिरेटरी ट्रिगर सेंसिटिविटी आपने, ऐसे तो वेंटिलेटर की एक्सपिरेशन भी अनलिमिटेड, लेकिन बहुत बड़ी एक्सपिरेशन है, पेशेंट ने एक्सपायर ही करे जा रहा है तो वो एक्सपिरेटरी फेज में ही रहता है। वो कभी भी इंस्पिरेटरी फेज में कब जाएगा? चलो तुम बताओ क्या इसका इंटरेस्टिंग आंसर है? इसका इंटरेस्टिंग आंसर यही है कि हम वेंटिलेटर पे देयर इज नो सच स्पॉन्टेनियस ब्रेथ्स। हम उन स्पॉन्टेनियस ब्रेथ्स को भी कंट्रोल ही कर रहे हैं वेंटिलेटर से, सिर्फ उसके रेट को नहीं कंट्रोल कर रहे, उसकी इंस्पिरेशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी एक्सपिरेशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं, उसमें ब्रेथ में प्रेशर कितना जा रहा है उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। सिर्फ हम ये नहीं कंट्रोल कर रहे दैट हाउ मच ब्रेथ्स विल बी कंट्रोल्ड, एवरी ब्रेथ विल बी कंट्रोल्ड। लेकिन हम कोई भी चीज जीरो नहीं कर सकते। यस, हम कोई चीज जीरो नहीं कर सकते हैं। तो उन स्पॉन्टेनियस ब्रेथ्स को सिंक्रोनाइज, 100% सिंक्रोनाइज भी नहीं कर सकते हम पेशेंट के न्यूरल रेस्पिरेटरी एफर्ट से। And on a spontaneous mode, this is the only parameter, ETS is the only parameter to synchronize the patient's spontaneous breath to the ventilator, and we can never do that. हमें क्या पता चल रहा है कि पेशेंट कब, मतलब कितनी देर का
इंस्पिरेट करेगा और कब उसको एक्सपायर करना है. वी कैन नेवर डू दैट. स्पॉन्टेनियस मोड में ये सारी सेटिंग्स बिल्कुल ही मिनिमल कर ये मिनिमली तो है. इससे और हम कम कर सकते हैं कि ये बिल्कुल मतलब ये 15 इसके अंदर आप जो सेट कर रहे हैं इससे और हम मिनिमल कर सकते हैं. लाइक प्रेशर सपोर्ट मिनिमम कर सकते हैं हम लोग कि मिनिमम 10 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर 10 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर का प्रेशर दे दिया फॉर एवरी ब्रेथ. तो जितना कम प्रेशर चाहिए होगा स्पॉन्टेनियस ब्रेथ में, इसमें अगर पेशेंट की अपनी एफर्ट मतलब प्रॉपर तो इसका मतलब है कि उसको वेंटिलेटर की सपोर्ट की उतनी ही कम जरूरत पड़ रही है. तो नाउ यू कैन एस्टिमेट इफ योर प्रेशर सपोर्ट इज minimal, so you can extubate the patient. This PEEP तो फिर भी आप नहीं देंगे. तो आप लाइक 100% इस वजह से कोई भी आप वेंटिलेटर ले लें, कोई भी पोर्ट ले लें, that will never ever 100% synchronize with the patient efforts. SMV mode आप देख लें, क्या 100% synchronize होता है? No. Patients are 100%. So no mode can be 100% synchronized with the patient effort, because हम उसको कभी भी मतलब उसकी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की टाइमिंग को इतना एक्यूरेट नहीं कर मैच नहीं कर सकते. Protecting the nasal interface, these are some things you can do. Use a structured skin assessment tools to check nasal condition regularly. Use a servo-controlled heated humidified gases in neonates, which is very important. Replace soil or wet interface promptly. Humidify as needed. आप स्किन केयर करें, स्किन इंटीग्रिटी को बार-बार चेक करें. Start करो. Okay. So you will need a ventilator, a humidifier, a servo control humidifier. Humidifier के ऊपर आपका चैम्बर जाता है. चैम्बर में आपने डिस्टिल्ड वाटर डालना है to the level of the aero, like चैम्बर इंस्टॉल करना है like this. अच्छा, heated wire circuit दो कलर्स में आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया. It will always be there will be a colored tubing and a transparent one. The colored one means that जितना भी colored tube है, that is the inspiratory part of the. This is called short limb or dry limb of the circuit. ये हमेशा ventilator को humidifier से connect करने के लिए होती है. So the inspiratory port to the humidifier, the gas comes from here, heated, humidified, and goes through this part of the circuit. ये वाला आपका जो पार्ट होता है वो यहाँ पे जाता है. अच्छा, इस पार्ट के अंदर दो ओपनिंग्स होती हैं, वन विद अ वायर एंड वन टी शेप की. तो वायर, इसके अंदर एक वायर होती है, ठीक है. ह्यूमिडिफायर के अंदर दो वायर्स हैं. ये आपके पास एक शॉर्ट वायर होती है, दिस वन, और एक लॉन्ग वायर होती है. जो शॉर्ट वायर होती है वो हीटर वायर कहलाती है. वो ह्यूमिडिफायर के पोर्ट. अच्छा, दिस टू विल ऑलवेज बी कलर कोडेड. मतलब आप किसी डिफरेंट कंपनीज का लेंगे तो वो कलर कोडेड होती है. सो द रेड गोज इनटू द रेड एंड द ब्लू गोज इनटू द ब्लू. मे बी येलो हो और ब्लू हो, बट देयर विल ऑलवेज बी कलर्स. तो आपके पास ये जो हीटर वायर होती है, ये बेसिकली वैसे तो एक आएगी, या कभी कभी आपके पास दो भी आती है. दो इसलिए होती है कि हमारे पास समटाइम्स सिंगल हीटेड वायर सर्किट आते हैं, या हमारे पास डबल हीटेड वायर सर्किट आते हैं जिनकी एक्सपिरेटरी जो लिम्ब होती है, दिस वन, उसमें भी हीटर वायर होता है. तो ये वाली जो ट्यूब होती है वो एक्सपिरेशन में जाती है और ये वाली इंस्पिरेटरी में जाती है. अगर आपके पास सिंगल हीटेड वायर सर्किट है तो आप सिर्फ यही वाली लगाते. ये इसको आप लगाते हैं वायर्स के अंदर, जहाँ पे ये 3 मुंह है इसके और 3 मुंह इसमें भी है. तो इसमें आपने यूं करके अटैच कर देना है. अब जब ये इसे अटैच करेंगे तो ह्यूमिडिफायर से पावर आएगी और इसके अंदर जो वायर है उसको गर्म करें, राइट. अच्छा, क्योंकि ये सर्वो कंट्रोल है, इसको तो हम टेम्परेचर नहीं दे रहे कि कितनी गर्म करनी है.
उसके लिए हमने टेम्परेचर सेंसर लगाया। दो जगह, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर सेंसर, और ये टेम्परेचर सेंसर एक लगता है एट द चैम्बर साइड और एट द एयर पे, यहाँ पे। तो ये दो जगह आपको टेम्परेचर मेंटेन करके देती है और सेंस करके देगी कि चैम्बर से निकलते वक्त गैस का टेम्परेचर क्या है और एट द एयरवे टेम्परेचर क्या है, राइट? इसको हम छोड़ देंगे। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन वायर। तो आप समटाइम्स इस एक्सटेंशन इस टेम्परेचर प्रोब को आउटसाइड द इंक्यूबेटर रख सकते हैं, या अगर आपके पास बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी आती है तो आप इसको इनसाइड द इंक्यूबेटर भी रख सकते हैं। और ये आपकी एक्सपिरेटरी लिम्ब है, तो एक्सपिरेटरी लिम्ब आपकी जाएगी द एक्सपिरेटरी पोर्ट ऑफ द सर्किट। And because we are using a Hamilton Medical C3 ventilator, तो उसके लिए हमें एक proximal flow sensor चाहिए, neonatal। तो the white goes into white and the blue goes into blue। फिर आपने इसको flow sensor attach करना है like this, and you take a ram cannula of appropriate size। आप वो attach करें, टर्न ऑन द वेंटिलेटर। तो ये आपके पास स्क्रीन आ गई। ये न्यूनेटल ऑप्शन, न्यूनेट पे जाना है, आपने वेट सेलेक्ट करना है बच्चे का, जितना भी वेट होगा, लाइक 2 kg, लेस देन 2 kg, 1.5 kg, एनीथिंग लाइक दैट। लेट्स सी 1.5 kg का बच्चा है, ठीक है। ये प्री ऑप्स चेक में जाके आपने वेंटिलेटर को कैलिब्रेट लाजमी करना है, टाइटनेस टेस्ट और फ्लो सेंसर टेस्ट परफॉर्म करना है। उसके बाद आप मोड्स में जाएं, मोड्स में NIV/ST पे जाएं, कंफर्म करें, एंड नाउ दिस इज P inspiratory। P inspiratory मीन्स द पिप, जो भी आप, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 15 to 18, एनीवेयर बिटवीन 15 to 18। सो लेट्स सपोज 18 सेलेक्ट करते हैं फॉर नाउ। पीप सेलेक्ट करनी है आपने, FiO2 अकॉर्डिंग टू द सैचुरेशन, बैकअप रेट maybe 30, our time 0.677 second रख लेते हैं। फ्लो ट्रिगर ऑफ 1 liters because to prevent auto trigger, confirm, and we start ventilation 1 minute to prevent auto। अच्छा, अब जब बच्चा सांस लेगा, okay, so the vent is saying oxygen supply failed, we do not have oxygen supply right now, तो हम इसको 21% पे कर देते हैं फिलहाल, because air से 21% आएगी तो the vent will। अब इस तरह का ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा आपके पास। so see, आपके पास लो मिनट वॉल्यूम और लो टाइडल वॉल्यूम का अलार्म शुरू हो गया। फिर आप जाएंगे मॉनिटरिंग में, और मॉनिटरिंग में आप लीक चेक करो। दिस इज लीक, तो आपने लीक को मिनिमाइज करके फिर जो है, कैन वी हैव 96% ऑफ लीक, तो उस दिन बहुत छोटे हैं तो, और लीक ज्यादा आ रही है तो सी एवरी ब्रेथ इज like triggered, you know, though the patient is not triggering, but every breath is triggered because the ventilator is auto triggering। तो आप ट्रिगर को थोड़ा सा बढ़ा दें, बिकॉज हमारे पास बहुत ज्यादा लीक आ रही है, तो अभी भी ट्रिगर कर रहा है। मैंने 2 liters किया है, बट हमारे पास 97% ऑफ लीक आ रही है। तो अब जो है हमारे पास लो मिनट वॉल्यूम के भी अलार्म चले गए।
बट अगर आपके पास आएंगे तो आपने अलार्म एडजस्टमेंट यहाँ से करनी है, तो लो मिनट वॉल्यूम का है, यू कैन जस्ट टर्न इट ऑफ, और लो टाइडल वॉल्यूम का भी आप ऑफ कर सकते हैं। और आप जो है मॉनिटरिंग में जाके यहाँ पे VTI देखेंगे कि बच्चा इंस्पिरेटरी टाइडल कितना बना रहा है। तो अगर इंस्पिरेटरी टाइडल अच्छा बना रहा है तो आप प्रेशर को कम भी कर सकते हैं। लीक आप यहाँ से देखेंगे। अच्छा मैडम, आप पी रैम नाउ व्हाट इज पी रैम? अभी 50, आप प्लीज अभी देखिए पी रैम हमने 50 और 50 है, तो आप प्रेशर का ग्राफ देखें एकदम इस तरह है। अगर आप इस पी रैम को बढ़ा दें 50 को, लेट्स सपोज 100 कर रहे हैं, आप देखें यूं, तो अब स्लोली प्रेशर राइज होगा। आप इसको मजीद बढ़ाएंगे, लाइक 200 पे करेंगे, अब देखिए कैसे स्लोली रीच हो रहा है। आप एकदम शूट करेंगे, प्रेशर शूटिंग को कंट्रोल करने। हमारी रिकमेंडेशन 70 है या 50? No, 50 is too high. It should be between 70 to 100 in neonates. Yeah, and you will have to continuously check के पेशेंट को प्रेशराइज हो रहा है, कंफर्टेबल हो रहा है। अब yeah, it depends on the disease, how stiff the lung is, how narrow the airways is. Yeah, स्लो बढ़ा है। ये देखिए अब ग्राफ कैसे बन रहा है, लाइक यूं करके बन रहा है। जब 50 होगा तो यूं करके एकदम शूट करेगा। Like in 50 millisecond means that in 50 millisecond the whole pressure will reach and it will stay in the lung for 0.5 seconds. हमारी रिकमेंडेशन है Seven- प्रीटर्म बच्चा है तो हम 75-80 पे 75-80, हाँ, लाइक जितना बड़ा होगा ताकि स्लोली प्रेशर बिल्डअप हो जाए। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता रही थी कि वाई दिस मोड ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा है लोगों को इस्तेमाल करने में, या इसलिए क्योंकि आपके पास स्क्रीन पे सारी चीज़ें आ रही है, मॉनिटरिंग आपके पास आ रही है, आपके पास पेशेंट एफर्ट्स आ रही है, पेशेंट एपनिक हो रहा है वो पता चल रहा है, पेशेंट ब्रीथ कितना कर रहा है, टाइडल्स कितना बना रहा है, वो सब आपके पास यहाँ पे हो रहा है। ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, क्योंकि वेंटिलेटर में ऑक्सीजन सेल होता है, तो यहाँ पे मॉनिटरिंग सिस्टम में 20, लाइक नाउ वी हैव सेलेक्ट 21%, तो ये बता रहा है कि 20% ऑक्सीजन जा रही है। लाइक 1 लीटर का तो डिफरेंस होता है, ऑक्सीजन कितनी जा रही है, पेशेंट एफर्ट कितना कर रहा है, एपनिया में कब जा रहा है, वो सब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो यू कैन गिव अ ट्राई, इंट्यूबेट करने से पहले बच्चे को इसका ट्रायल दे सकते हैं। देन अगर नहीं सक्सेसफुल हुआ तो आपको और कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपने कैनुला हटा के ट्यूब डालनी है। सो इस वजह से दिस इज मोर फीजिबल कि आपको यूज करने में भी कोई सच मतलब वो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना CPAP होता है। एंड टाइडल CO2 मैडम लग सकता है, आप लगा सकते हैं, लेकिन एंड टाइडल CO2 जो न्यूनेटल में इतना ज़्यादा वो नहीं होता, रिलाई नहीं कर सकते। आपके पास अगर आपके पास लीक आती है तो वो एंड टाइडल CO2 की रीडिंग्स जो है वो सही नहीं आती। +-5 वाला भी नहीं मैडम, वो आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लीक इसमें ज़्यादा आती है ना, और जब लीक आएगी तो वो पूरा का पूरा टाइडल वॉल्यूम को तो वो सेंस नहीं करेगा, उसमें CO2 कितना है वो भी, उसमें आपको एंड टाइडल CO2 में भी लीक वॉल्यूम इतना शो हो रहा होगा। गैस की स्टांस yes like invasive CO2 मॉनिटरिंग ही वैसे भी अगर आप न्यूनेटल में देखें, अगर आपकी अनकफ्ड TTTs होती है और लीक ज्यादा आती है, उस दौरान भी एंड टाइडल CO2 आपका ग्राफ ही नहीं बनेगा। यस, हाँ वो तो हाँ एग्जैक्टली, ग्राफ ही सही नहीं बनेगा। तो अगर ग्राफ ही नहीं बनेगा तो रीडिंग भी सही नहीं आएगी। it's better to do gas rather than Yeah, of course, it will have to rely on invasive EVGs. End-tidal CO2 will not give you
थैंक यू। इसमें कोई लीक कट ऑफ है कितना लीक Like 30 to 40% leak is acceptable. More than 50% is not acceptable. उसके लिए आपने वही इंटरफेस को चेंज करना है आपने। टाइप बड़ी हाँ, अच्छा इसके लिए मैंने देखा है कि वो जो क्या ड्रेसिंग आती है जो बिल्कुल नियर साइज का ही होता है, क्या कहते हैं सर आप लोग यूज करते हैं? ट्यूरम, या एक और भी आती है जो बिल्कुल नियर्स की शेप की होती है, वो भी वो कट जाती है। काटना पड़ता है। यस यस यस, मैंने देखा है, हाँ मैंने देखा है। उसका कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, आपको पता? जी ये अंडर स्टडी है जी। तो अभी उसको यूज कर रहे हैं और आपको कुछ फीडबैक मिल रहा है वो क्या अभी तक शेयर और क्या है? अंडर ट्रायल्स तो सारी ही चीज़ें जब जो भी थेरेपीज पहले आती है वो अंडर ट्रायल्स ही होती हैं। अगर आपने बबल सीपैप का देखा है, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि ये बबल सीपैप कैसे इन्वेंट हुआ, कोई यूके के अंदर स्टडी हो रही थी और उसमें लाइक रेट ऑफ मॉर्टेलिटी बहुत हाई थी बाकी इंस्टीट्यूशन में, और एक इंस्टीट्यूशन ऐसा था कि उसमें बहुत कम मॉर्टेलिटी रेट था। तो जब उधर लोग आए, आई डोंट नो उस पर्सन का नाम मैं भूल गई, जो डॉक्टर साहब थे जिन्होंने बबल सीपैप को इन्वेंट किया था, तो वो बिल्कुल ही बहुत बेसिक सी इक्विपमेंट को काट पीट के उन्होंने अपना दिमाग लगाया तो बबल सीपैप। तो जब उधर पता चला कि अच्छा ये क्या डिफरेंट कर रहा है, ऐसा क्या कर रहे हैं जो बाकी इंस्टीट्यूशंस नहीं कर रहे हैं, तो पता चला कि उन्होंने अपना ही कोई तरीका बनाया हुआ है विच इज नॉट इन द बुक्स, नॉट इन द गाइडलाइंस, कहीं पे भी नहीं है, वो उन्होंने अपने तौर पे बनाया हुआ है और वो अपने तौर पे यूज कर रहे हैं। तो उसके बाद बबल सीपैप उन्होंने उसका सारा फिजिक्स समझाई कि ये इस तरह से, इसकी पूरी एक डॉक्यूमेंट्री है और आई थिंक यूट्यूब के ऊपर है, कहाँ आप देखिएगा, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पता चला कि डॉक्टर साहब जो है ना ये कुछ चीजें काट पीट के लगा रहे हैं और उससे बच्चों को फायदा भी हो और बहुत फायदा हो रहा है। उनका मॉर्टेलिटी रेट कंपेयर टू बाकी इंस्टीट्यूशन बहुत कम था। इसी वजह से जो भी थेरेपीज आती है दैट हैज टू गो थ्रू सम ट्रायल्स, और ये तो आपने करना ही है, मतलब अगर आप ट्रायल्स नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे तो हाउ विल यू चाहिए। C3 वेंटिलेटर में देयर इज एन ऑप्शन इन अ मॉनिटरिंग सिस्टम कि आपको ये टाइडल वॉल्यूम पर आइडियल बॉडी वेट बताता भी है कि पेशेंट कितना टाइडल वॉल्यूम पर केजी बना रहा है। आप सेट भी करेंगे ना तब भी वो आपको बताएगा। लेट सपोज APV CMV मोड में अगर आप टाइडल वॉल्यूम को बनाते हैं तो ये छोटा सा नजर आ रहा है आपको, इस स्क्रीन में नजर आ रहा है? नहीं, इसमें तो आई नो नो, हाँ यहाँ पे कि दिस टाइडल वॉल्यूम इज हाउ मच आइडियल ऑफ आइडियल मोड, यस हाउ मच ऑफ, तो ये आपको कंट्रोल में भी नजर आता है और आपको मॉनिटरिंग में भी नजर आता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पैरामीटर है फॉर योर यू नो असेसमेंट के आपका कितने ml पर kg बना रहा है। अगर आपको इससे भी नहीं फायदा हो रहा तो आप इसमें ट्रेंड्स में भी देख सकते हैं, लाइक पिछले 8 घंटे में बच्चे ने कितना टाइडल वॉल्यूम बनाया, उसका एक एवरेज वैल्यू आएगी आपके पास और एक ग्राफ बना हुआ आएगा। तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि पिछले 6 घंटे से बच्चा अच्छा टाइडल बना रहा है या बना नहीं रहा, और इसी तरह और बाकी सारे ट्रेंड्स भी आप देख सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग कितनी थी पिछले 6 घंटे में, एक एवरेज वैल्यू आएगी और एक पूरा ग्राफ आएगा। मिनट वॉल्यूम या लीक, इवन लीक का ट्रेंड आएगा कि पिछले 6 घंटे में लीकेज कितनी थी। तो 12 घंटे का भी ट्रेंड आता है इसमें, 24 घंटे का ट्रेंड आता है एंड 72 आवर्स का। सो अप टू 72 आवर्स का जितनी मॉनिटरिंग पैरामीटर है उसका ट्रेंड आता है आपके पास, एंड आपको ये देखना चाहिए ट्रेंड, और ये हर वेंटिलेटर में होते हैं। तो ट्रेंड्स आपको देखने चाहिए कि लीकेज कितनी आई है पिछले 24 घंटे में, आपका रेजिस्टेंस
कितनी बढ़ी है। मैं तो हर किसी को बोलती रहती हूँ कि ट्रेंड्स लाजमी देखा करें, आपको बहुत सारी चीज़ें उससे पता चलती है। इवन वीनिंग के दौरान आपको ट्रेंड्स बहुत हेल्प करते हैं